Good morning, dear students. Welcome to the class of teaching of physical sciences. भौतिक विज्ञान शिक्षण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है. Students, today we are going to begin with the topic laboratory as a learning resource in teaching of science or physical sciences. Under this topic, we will discuss what is a science laboratory or physical sciences laboratory, what is the importance of science or physical sciences laboratory in the schools, what are the advantages of science or physical sciences laboratory from the point of view of learners, what kind of facilities and laboratory materials are provided in a general science laboratory, what precautions should be taken by the learners while performing experiments inside the laboratory, what should be the layout or design of the science laboratory, how different equipments and materials should be maintained inside the laboratory, and what kind of first aid should be taken in case of some accidents occurs inside the science laboratory while performing some experiment. All these we will discuss in 3 to 4 sessions, and in today's session we are going to discuss the basic things about laboratory, that is, what is a science laboratory or school science laboratory, what is the importance of science or physical sciences laboratory in schools, and what are the advantages of science or physical sciences laboratory. In today's session we are going to discuss only these 3 points, and the rest of the things we will take up in our coming next sessions. So let us begin with first science laboratory. So dear learners, if we talk about science laboratory, so it is the most important support system or learning resource that assists the teaching and learning of physical sciences, or we can say of science. Why? Physical, because physical sciences or science teaching, it is different from the teaching of other subjects like mathematics, English, Hindi, Sanskrit. These subjects do not need experiments or lab work mostly. But in case of science or physical sciences, most of the lessons they are accompanied by demonstration and or laboratory or experimental work. साइंस और फिजिकल साइंस में ज़्यादातर चैप्टर्स में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, या लेबोरेटरी या एक्सपेरिमेंटल वर्क इन्वॉल्व रहता है जो अब बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं होता है. इसीलिए फिजिकल साइंस या साइंस टीचिंग में साइंस लेबोरेटरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम या लर्निंग रिसोर्स रहता है शिक्षण अधिगम को सपोर्ट करने के तौर पर. एंड लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल वर्क से क्या होता है, इट ऑलवेज सप्लीमेंट्स क्लासरूम एक्टिविटीज़ इन साइंस लर्निंग. विज्ञान को अगर सीखना हो तो उसमें क्लासरूम गतिविधियों को सबसे ज़्यादा जो है सप्लीमेंट जो करता है, सपोर्ट करता है, वो लेबोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल वर्क ही रहता है. अब साइंस लेबोरेटरी होती क्या है स्कूल में? स्कूल साइंस लेबोरेटरी एक प्लेस है. इट इज़ ए प्लेस इन ए स्कूल वेयर बेसिक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स are learnt by the learners by systematically performing a simple set of prescribed and suitability designed experiments. जो बच्चे हैं वो स्कूल साइंस लेबोरेटरी वो स्थान है जिसमें जाकर बच्चे जो है बेसिक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को सीख सकते हैं बाय कुछ एक्सपेरिमेंट्स को या प्रयोगों को करके. और वो प्रयोग कौन से होते हैं? जो सुटेबली डिजाइंड होते हैं और प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम के अकॉर्डिंग रहते हैं, क्लास लेवल के अकॉर्डिंगली. दूसरा, स्कूल साइंस लेबोरेटरी एक वो स्थान है, इट इज़ ए प्लेस फॉर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स बाय वंस ओन हैंड. इट इज़ ए प्लेस, साइंस लेबोरेटरी वो प्लेस है जहाँ पर एक इंडिविजुअल लर्नर जो है अपने खुद के हाथों से प्रयोग को कर सकता है. एंड दीज आर मेंट नॉट ओनली फॉर प्रोवाइडिंग थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस. और ये जो एक्सपेरिमेंट्स खुद करने होते हैं ये सिर्फ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए नहीं होते हैं, बट इसका एक सिद्धांत होता है जो अपने अंदर इन्वॉल्व करता है लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल को. इट एंटेल्स द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. तो स्कूल साइंस लेबोरेटरी एक प्लेस है जिसके ज़रिए जो फैसिलिटेट करता है साइंस के कंसेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग में लर्नर्स को. स्कूल साइंस लेबोरेटरी एक प्लेस है, इट इज़ ए प्लेस टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट वर्क suggested at the elementary और secondary stage. स्कूल साइंस लेबोरेटरी में
एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्टेज के बच्चे जो हैं कुछ प्रयोग या प्रोजेक्ट्स को कर सकते हैं जो कि प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम सिलेबस के अकॉर्डिंगली होते हैं, और उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दे आर इंटेंडेड टू डेवलप बेसिक स्किल्स, जो कुछ आधारभूत कौशलों को विकसित करते हैं बच्चों में, जैसे कि स्किल ऑफ मेजरमेंट, हैंडलिंग ऑफ सम कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ मेजर करना है, किन्हीं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना है, इक्विपमेंट्स को हैंडल करना है, केमिकल्स को हैंडल करना है, सेट करना है सिंपल ऑपरेटर्स को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, हैंडलिंग माइक्रोस्कोप है या प्रिपेयरिंग स्लाइड्स हों, मेकिंग ऑब्जर्वेशन हो, प्रयोग करते हुए ऑब्जर्वेशंस करना हो, या डाटा कलेक्ट करना हो, या उस कलेक्टेड डाटा को अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में प्रेजेंट करना हो। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चा इन कौशल्स को या इंटरप्रेट ड्रॉ करने होंगे उनके उनसे, और उनकी रिपोर्ट बनानी हो, तो ये जो जितने भी स्किल्स हैं इन सब को प्रैक्टिस करता है स्कूल साइंस लेबोरेटरी में। अब क्वेश्चन आता है कि ये सब चीज़ें करनी क्यों हैं, वाई दीज आर इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए अगर हम साइंस लेबोरेटरी की इंपॉर्टेंस को देखें तो दैट विल गिव अस अ प्रॉपर आंसर टू दीज थिंग्स, कि ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी कि बच्चा बेसिक एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को लर्न करता है, लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल से एक्सपेरिमेंट्स करता है, अपने हाथों से करता है, साइंस के कंसेप्ट को समझता है, और बेसिक स्किल्स को जो है वो साइंस के जो होते हैं उनको लर्न करता है, तो वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। अब आज की अगर बात करें तो इन टुडेज टाइम एक्सपेरिमेंट्स प्ले ए क्रूशल रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस। अगर आज हम बात करें, अगर साइंस ने तरक्की करनी हो, प्रोग्रेस करनी हो, तो उसमें एक्सपेरिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये आप सभी जानते भी हैं क्योंकि आप सभी साइंस स्टूडेंट्स भी हैं और आपने ये सब पहले भी स्टडी किया हुआ है। और अगर हम एक नज़र देखें, अ लार्ज नंबर ऑफ पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी, जितनी बड़ी बड़ी इन्वेंशन या डिस्कवरीज हुई हैं, दे हैव बीन पॉसिबल थ्रू इन्वेस्टिगेशंस डन यूजुअली इन द लेबोरेटरीज। जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेंशंस या डिस्कवरीज हुई हैं वो तभी हुई हैं क्योंकि वो सब इन्वेस्टिगेशन ज़्यादातर लेबोरेटरीज में की गई हैं। इसीलिए ये अनुभव स्कूल लेवल पर देने के लिए साइंस लेबोरेटरी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक स्किल्स अगर मिलेंगे तभी बड़े लेवल के एक्सपेरिमेंट जो हैं वो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल वर्क is therefore an essential component of any course in science, especially to acquaint the learners with basic tools and techniques used in science laboratory। इसीलिए क्योंकि जो बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, वो ज़्यादातर लेबोरेटरीज में ही होती हैं, और साइंस की प्रोग्रेस भी एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों में, लर्नर्स में साइंस के जो बेसिक टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, जो लेबोरेटरी में यूज़ किए जा सकते हैं, उनको पहले से बचपन से ही इंकलकेट किया जा सके। थर्ड, इट डिवेल्प्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अमंग लर्नर्स। साइंस लेबोरेटरी में जब बच्चा काम करता है तो उससे बच्चे के अंदर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो डेवलप होते हैं। दीज स्किल्स हेल्प द लर्नर टू एक्वायर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम। तो इन स्किल्स की मदद से बच्चा जो है किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में की एबिलिटी जो है उसमें विकसित हो जाती है। उसमें एबिलिटी विकसित होती है टू डिज़ाइन एंड टू सेटअप द एक्सपेरिमेंट, कि वो डिज़ाइन कर सकता है और एक्सपेरिमेंट को कर सकता है। टू कलेक्ट एंड एनालाइज डाटा थ्रू एक्सपेरिमेंट, जब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल करेगा तो वो कोई एक्सपेरिमेंट करेगा, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, उसका एनालाइज करेगा थ्रू एक्सपेरिमेंट, तो ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। एंड टू इंटरप्रेट डाटा टू अराइव एट ए प्लॉसिबल सॉल्यूशन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और वो उस डाटा को जो इकट्ठा करेगा एक्सपेरिमेंट करके उसको उसको इंटरप्रेट करेगा, ताकि एक प्लॉसिबल मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन तक पहुंच सके एक लिमिटेड टाइम के अंदर। इसलिए साइंस लेबोरेटरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सो दीज आर इन फैक्ट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबोरेटरी वर्क। ये जो हमने तीन चीज़ों को डिस्कशन की है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं लेबोरेटरी वर्क के, एंड दिस बिकम्स द न्यूक्लियस ऑफ फिलॉसफी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय द लर्नर। अगर हम बात करें आज के दौर में, तो आज के दौर में जो स्कूल एजुकेशन है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या कहती है कि नॉलेज जो है, लर्नर जो है वो एक्सपेरिमेंट करके, खुद एक्टिविटी करके जो है नॉलेज को बिल्ड करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। तो साइंस लेबोरेटरी भी कहीं ना कहीं उस न्यूक्लियस, जो फिलॉसफी ऑफ कंस्ट्रक्शन नॉलेज बाय लर्नर है, उसके न्यूक्लियस की तरफ पॉइंट आउट करती है। So that is why science laboratory is very important. Further, it helps in better understanding of various concepts of science and construction of knowledge। ये वही बात है कि जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा तो एक्सपेरिमेंट करके उसको साइंस का कंसेप्ट समझ आएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज भी उसके साथ के साथ होती चलेगी।
The first-hand experience obtained through experimental work imprints a permanent impression on the mind of the learners. तो जब बच्चा लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है, तो जो वो खुद अपने हाथों से करेगा, वो जो इम्प्रिंट आता है वो परमानेंट इम्प्रेशन आ जाता है माइंड ऑफ द लर्नर के. फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद हो, जब आपने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस किया था, जब तक आपने उसको थ्योरेटिकली पढ़ा था आपको वो समझ नहीं आता कि क्रिस्टल बनते कैसे हैं, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कैसे आता है. लेकिन जब आप उसको खुद करते हैं और ग्लास रॉड पे वो जो है उसको जो ब्लो एयर करते हैं और उससे जो क्रिस्टलाइज छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपको जो फील होते हैं, उससे आपको क्रिस्टल पॉइंट जब निकलता है, तो वो एक्सपीरियंस आप अभी तक नहीं भूल पाए हैं और इसको कभी नहीं भूलते. इवन मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था, तो मुझे आज से 25 साल पहले की बात जब याद है, 25 से 30 साल, 25 से 26 साल पहले की बात याद है, तो आप लोग भी करते हैं. तो जब हम कोई चीज़ खुद करते हैं तो वो इम्प्रेशन हमारे दिमाग में परमानेंट आ जाता है, तो उसको बच्चा भूलता नहीं है. उसी तरह से इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द टीचर टू इंकलकेट वेरियस प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंस. और इससे साइंस लेबोरेटरी जो है वो टीचर को भी हेल्प करती है बच्चों को, बच्चों में इंकलकेट करने का प्रोसेस स्किल्स के. साइंस के प्रोसेस स्किल्स क्या होते हैं? जैसे अगर साइंस को प्रोसेस करना है, एज ए प्रोसेस साइंस को देखें, तो उसमें ऑब्जर्वेशन होती है, क्लासिफिकेशन होती है, एनालिसिस ऑफ डाटा है, रिकॉर्डिंग है, इन्फरिंग है, जनरलाइजेशन एंड कम्युनिकेटिंग है. ये वही बात आ गई जो पहले बात की थी कि एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसको ऑब्जर्व किया, फिर क्लासीफाई कर दिया, एनालाइज किया डाटा को, फिर उसको रिकॉर्ड किया, इन्फर किया, कंक्लूजन निकाले, फिर उसको जनरलाइज कर दिया, सामान्यकरण हो गया, और फिर उसको कम्युनिकेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट. तो ये सब चीज़ें अगर एक बच्चा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत कम होंगी, क्योंकि लेबोरेटरी एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है बच्चे को ये सब करने के लिए. उसी तरह से प्रोसेस स्किल्स सो एक्वायर्ड हेल्प इन डेवलपिंग इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी दैट कंस्टिट्यूट साइंटिफिक एटीट्यूड. और बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट करके इन प्रोसेस स्किल्स को एक्वायर करता है, तो नेचुरली इससे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसमें वैल्यूज आती हैं, और इंक्वायरी की जो स्पिरिट है वो मजबूत हो जाती है. और ये इंक्वायरी की जो स्पिरिट है, ये सब मिलकर जो है, दैट मीन्स इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, दे कंस्टिट्यूट करती है साइंटिफिक एटीट्यूड को. यानी कि साइंस लेबोरेटरी जो है वो एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप करने में हमारी मदद करती है. देन स्टूडेंट्स लर्न वाइल हैंडलिंग, मैनिपुलेटिंग एंड इनोवेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स. स्टूडेंट्स जब हैंडल करते हैं, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, अप्रेंटिस से डील करते हैं, तो उनको डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट को मैनिपुलेट करना आ जाता है और उसमें वो इनोवेशन कर लेते हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम बच्चे को साइंस का एक्सपोजर देते हैं, उसको स्पिरिट लैम्प से रूबरू कराते हैं, तो स्पिरिट लैम्प को देख के उसको इनोवेशन का आइडिया आता है कि वो स्पिरिट लैम्प तो मेटालिक ब्लॉक है, वो उसको खरीद नहीं सकता. तो जैसे पुराने समय में हम बोतल, पुरानी जो कोई दवाई की बोतल होती थी या कोई सिंपल बॉटल होती थी, उसके ढक्कन में चेंज करके उसमें जो है वो डोरी डाल के उसमें तेल भर के उसका लैम्प बना सकते थे. तो उसी तरह से अगर उस बॉटल में स्पिरिट डाल दें तो वो स्पिरिट लैम्प का काम कर सकती है. तो दिस इज इनोवेशन. सो मैनिपुलेट कर सकते हैं. जब वो डिफरेंट चीज़ों से डील करते हैं, दे कैन मैनिपुलेट एंड इनोवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स. बट वो सब कब आएगा? जब तक बच्चे हैंडल नहीं करेंगे, तब तक वो उसको ना मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना वो इनोवेट कर सकते हैं. दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग. सो दैट इज वाई साइंस लेबोरेटरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. एंड देन इट प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट टू लर्नर्स फॉर एग्जिबिटिंग देयर क्वालिटीज. और ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है साइंस लेबोरेटरी लर्नर्स को कि वो अपनी क्वालिटीज़ को एग्जिबिट कर सके. जैसे कि रिसोर्सफुलनेस है, उसके पास बहुत टैलेंट है, वो उसको यूज़ कर सकता है. इनिशिएटिवनेस है, वो कोई नया इनिशिएटिव ले सकता है. ऑर्डरलीनेस है, वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में काम कर सकता है. कॉपरेशन है, एंड टीम स्पिरिट है. कई बार आप एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअली करते हो, कई बार आप ग्रुप में करते हो, आगे हम उसकी भी चर्चा करेंगे. बट ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जिबिट कर सकता है इन क्वालिटीज़ को while performing some experiments in the science laboratory. So that is why science laboratory is also important in schools, particularly for science or physical sciences learning. Another, हाँ, एक बात ज़रूर है कि लर्नर्स कैन नॉट रीडिस्कवर ऑल ऑफ द साइंस. कि अगर हम बात करेंगे हम टोटल साइंस बच्चे को लेबोरेटरी में सिखा देंगे, ऐसा नहीं है. टोटल साइंस जो है वो नहीं सिखाई जा सकती किसी भी बच्चे को लेबोरेटरी में. However, encouraging them to observe, investigate, and think critically on a laboratory activity can facilitate them to construct some abstract concepts and principles of
science to awaken curiosity about the world around them and to gain a feel of appreciation of science. हालांकि हम पूरी चीज़ें उनको नहीं बता सकते हैं, पूरी साइंस नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करवा के हम उनको नेचर की जो है, उनके वर्ल्ड, जो उनके अराउंड का वर्ल्ड है, उसकी जो है वो एक्सपोजर जो है बच्चों को लेबोरेटरी में थोड़ा थोड़ा हम दिला सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, तो उससे हम जो सिंपल मेजरमेंट्स हमारे लाइफ में होती हैं, हम कुछ डाइल्यूट करते हैं, मेडिसिन को यूज़ करते हैं, या फिनाइल को फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं. सो ये सब चीज़ें हम जो है उस तरह से यूज़, वी कैन शो देम, वी कैन मेक देम लर्न दीज थिंग्स, कि वो जो सिंपल एक्टिविटीज़ है उनको देखे, उनको करे और उनको रियल लाइफ सिचुएशन में उसको अप्लाई कर सके. फॉर एग्जांपल, हम बच्चों से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करवाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स. मान लीजिए हमने डायोड का, रेजिस्टेंस का कुछ सर्किट बनवा दिया, बैटरी बनवा दी. सबसे बड़ा टॉर्च का जो सिस्टम है, अगर हम बैटरी सेट करना चाहते हैं तो बच्चा टॉर्च खुद बना सकता है. तो टॉर्च रियल लाइफ में यूज़ हो रही है, वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, लेकिन बच्चे को हम उससे छोटे छोटे सर्किट जो है कनेक्टिंग वायर्स की मदद से स्कूल सिस्टम के अंदर बनवा सकते हैं. तो ताकि वो बच्चा जो है वो फील करे और अप्रिशिएट करे कि साइंस को इन द रियल लाइफ सिचुएशंस. तो अगर हम बात करें, लेबोरेटरी वर्क फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़. तो जब लेबोरेटरी वर्क करवाते हैं तो उससे एक बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो बौद्धिक क्षमताएं विकसित होती हैं. दैट इज प्रिंसिपल्स एंड लॉज डिस्कस इन द क्लासरूम मे प्रिसीड और फॉलो द लेबोरेटरी वर्क और इट मे बी कैरिड आउट ड्यूरिंग द डिस्कशन. तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को डेवलप करने का मतलब है कि जो प्रिंसिपल्स या लॉज हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, तो या तो बच्चा उन लॉज को डिस्कस करने के बाद लेबोरेटरी में प्रैक्टिस कर सकता है, या कई बार वो लॉज उसने सीखे तो होते हैं लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करता है तो उसको ज़्यादा समझ आती है. फॉलो द लेबोरेटरी वर्क, कि लेबोरेटरी वर्क के बाद उसको समझ आई. प्रिसीड का मतलब है उसने पहले समझ लिया, फिर उसको लेबोरेटरी में प्रैक्टिस कर लिया. और इट मे बी कैरिड आउट ड्यूरिंग डिस्कशन, या कई बार इन दोनों चीज़ों को उसने प्रैक्टिकल भी किया होता है, क्लास में थ्योरी भी पढ़ी होती है, और ड्यूरिंग डिस्कशन जो है वो चीज़ें उसको आती हैं. सेकेंड, द लेबोरेटरी वर्क फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंस. ये हमने पहले भी डिस्कस किया. प्रोसेस स्किल्स हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन है, रिकॉर्डिंग है, एनालिसिस है, इन्फरिंग है, देन इंटरप्रेटिंग है, और उसके बाद कम्युनिकेट करना है, उसको रिपोर्ट बनाना है. सो दिस प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंस. थर्ड, साइंटिफिक एटीट्यूड. ये जो प्रोसेस स्किल्स हैं इसी से साइंटिफिक इंक्वायरी की स्पिरिट जो डेवलप होती है. क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है, देन इंक्वायर करना किसी चीज़ को, सिस्टमेटिकली उसको इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज ए साइंटिफिक एटीट्यूड. सो दैट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी वर्क इनसाइड द साइंस लेबोरेटरी. देन फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ साइंस. और जब ये सब बच्चा करता है लेबोरेटरी में तो उसको साइंस के नेचर को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है. So these are the points which tells that science laboratory is very important. So laboratory work facilitate development of four things: understanding nature of science, cognitive abilities, process skills, and scientific attitude. Then further, अब एक बात बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, the kind of experiences provided by the laboratory cannot be replaced by any other exercise. जो एक्सपीरियंसेस लर्नर को लेबोरेटरी में मिलते हैं वो किसी दूसरी एक्सरसाइज से नहीं मिल सकते. So, well-planned laboratory experiences have a great potential to attract our younger generation into science courses. तो अगर हम well-planned laboratory experiences provide करते हैं तो हम younger generation को science course में उनको attract कर सकते हैं, वो sciences को पढ़ने में interest develop कर सकते हैं. So this is only with the help of science laboratory. Normally it is not possible. Then one more thing to keep in mind: performing experiments in prescribed fashion and just involving students in hands-on activities do not result in development of inquiry skills in science. कि सिर्फ बच्चों को हमने एक्सपेरिमेंट करा दिए, उनको हैंड्स ऑफ एक्टिविटीज दे दी, तो इससे इंक्वायरी स्किल जो है, जो साइंटिफिक एटीट्यूड है, वो डेवलप नहीं होता है. डेवलपमेंट ऑफ इंक्वायरी स्किल्स कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस स्किल्स ऑफ साइंस. मतलब हम बच्चे से अगर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, प्रोसेस करवा रहे हैं साइंस का, तो इससे गारंटी तो नहीं है कि जो है बच्चे में इंक्वायरी स्किल डेवलप हो जाएगा. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटीज टू रेज क्वेश्चंस involving the learners in critical discussions, investigating their own questions and being flexible in the work should be facilitated in the laboratory. तो अगर बच्चे में रियल में जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना है तो उसको
अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए, और वो लेबोरेटरी में मिलेगी। जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लाइक दैट। तो ये सारे जो डिस्कशन हैं ये लेबोरेटरी में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट अपॉर्चुनिटी टू रेज क्वेश्चन, उसको मौका मिले क्वेश्चन रेज करने का, और क्रिटिकल डिस्कशन में इन्वॉल्व करना है लर्नर्स को, और उन्हीं को कहना है कि आपके जो खुद के क्वेश्चन है जस्ट सर्च आउट, इन्वेस्टिगेट कीजिए देन, एंड बीइंग फ्लेक्सिबल इन द वर्क, और उस वर्क में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी, रिजिड नहीं होना चाहिए। तो वो फैसिलिटेट करेगा लेबोरेटरी वर्क को, और उससे साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो डेवलप हो सकती है बच्चे के अंदर। सो इंक्वायरी कैन बी ब्रॉडली प्लान्ड कंसिडरिंग लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम इन क्राउडेड क्लासरूम। तो हम इंक्वायरी को क्या कर सकते हैं, साइंस लेबोरेटरी में हम प्लान कर सकते हैं। सो साइंस लेबोरेटरी एक प्लान करने का जरिया बन जाता है, और उसमें टाइम थोड़ा होता है, और क्राउडेड क्लासरूम में जो पॉसिबल नहीं है वो आप लेबोरेटरी में कर सकते हो। सो दैट इज वाई दिस दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस लेबोरेटरी, एंड इट इज टू kept in mind that emphasis should be given to the first five letters of laboratory, labor, rather than the last seven letters laboratory, that is oratory। तो लेबोरेटरी वर्क का मतलब है कि हमने लेबर यानी कि उनको लर्निंग बाय डूइंग की बात करनी है, देन द ओरेटरी कि हमने उनको बता दिया ऐसा होता है या वैसा होता है। जब तक ऐसा नहीं होगा तो बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम जिसकी वजह से साइंस लेबोरेटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है साइंस लर्निंग के अंदर। सो लॉ लेट अस टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ साइंस लेबोरेटरी। अगर हम सारी इन चीज़ों की बात करें तो सारी चीज़ें हम बच्चे के लिए ही कर रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंस है वहीं से एडवांटेजेस निकल के आती हैं, बच्चे के लिए क्या फ़ायदे होते हैं लेबोरेटरी के। अब जो हमने इंपॉर्टेंसेस डिस्कस की हैं उसी के बेस पे फ्यू पॉइंट्स मैंने क्लब किए हैं, तो यू कैन हैव अ लुक एट दैम। सो एडवांटेजेस क्या हैं, तो जब बच्चा साइंस लैब में वर्क करता है तो इट डिवेल्प्स इंट्यूशन एंड डीपन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट। तो एक तो साइंस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बच्चे की बढ़ जाती है, वो गहरी हो जाती है, उसको क्लियरिटी ज़्यादा होती है, प्लस इंट्यूशन। अब ये इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन जब बच्चे को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, लॉज होते हैं उसके पास, लॉजिक्स होते हैं, एक या दो डिफरेंट लॉज हैं, तो बच्चा उनको ऑटोमेटिकली अप्लाई करना शुरू कर देता है। तो उसकी इंट्यूशन होती है कि ये लॉ लगा, फिर ये दूसरा लॉ लग गया, फिर ये तीसरा लग गया, तो इन सब के मिलकर ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन की बात है, कि अगर धरती में हमारा हम जब हम व्हेन वी वॉक देयर इज ए फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप कर जाएंगे, राइट। तो फ्रिक्शन जो है वैसे तो वो रेजिस्टेंस है, फ्लो के लिए वो चलने को रोकता है, लेकिन बिना फ्रिक्शन के हम प्रॉपर चल भी नहीं पाएंगे। सो दिस काइंड ऑफ लॉजिक्स दे कैन लिंक विद ईच अदर, दैट वन काइंड फ्रिक्शन इज ए रिवर्स फोर्स। फ्रिक्शन जो है वो गलत चीज़ है, वो अवरोध उत्पन्न करती है, लेकिन वही अवरोध है जिसकी वजह से हम धरती पर संतुलित होकर चल सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं दे रहा हूँ, यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर एग्जाम्पल्स लाइक दिस। सो working in a science laboratory, it develops intuition and deepens the understanding of concepts. Second, it enables the students to apply the concepts learned in the class to new situations. तो जो बच्चे ने क्लास में जो कंसेप्ट सीखे होंगे लेबोरेटरी में वो उनको समझ प्रॉपर बनाएगा, तो ही और शी कैन यूज दैम इन द डिफरेंट न्यू सिचुएशन। थर्ड, इट एनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस बेसिक फिनोमिना, और बेसिक फिनोमिना को बच्चा जो है वो लेबोरेटरी में वर्क करके एक्सपीरियंस कर सकता है, क्योंकि लेबोरेटरी एक मिनिएचर है। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक जो स्किल्स हैं, बेसिक एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपोजर है या वो है, वो सारा लेबोरेटरी में ही बच्चे को मिलता है। सो इट एनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सपीरियंस द बेसिक फिनोमिना। इट डिवेल्प्स क्रिटिकल, इंट्यूटिव एंड रैशनल थिंकिंग। जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, तो उसमें क्रिटिकल, इंट्यूटिव एंड रैशनल थिंकिंग जो है वो भी डिवेल्प होती है। इट एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न टू यूज साइंटिफिक अपरेटस। ये तो है ही, जब बच्चा अपरेटस को डील करेगा तो उससे उसको बच्चे में एबिलिटी डेवलप होती है कि कैसे साइंटिफिक अपरेटस को डील करना है। फॉर एग्जांपल, जब आपने पहली बार वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया होगा, पिपेट, ब्यूरेट, कॉनिकल फ्लास्क, और उसको यूज़ किया होगा, तो इट वॉज ए डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो एट प्रेजेंट यू आर स्किल्ड इन दैट, तो साइंटिफिक अप्रेंटिस को यूज़ करना अब आपको आता है। देन इट एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न टू रिकॉग्नाइज एंड एस्टिमेट एरर्स। तो जो ये साइंस लेबोरेटरी वर्क जो है, जब बच्चा वर्क करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, तो उससे वो रिकॉग्नाइज कर जाता है कि एरर कहाँ और एस्टिमेट कैसे करना है उस एरर को।
डेवलप्स रिपोर्टिंग स्किल्स। जब बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट करेगा उसकी रिपोर्ट बनाता है, जैसे आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे, वो एक रिपोर्ट होती थी एक्सपेरिमेंट की, चाहे वॉल्यूमेट्रिक हो, क्रिस्टलाइजेशन हो, या आपने टी लीव्स का कंपैरिजन किया हो कि विच टी इज़ बेटर, उसके ऊपर प्रोजेक्ट वर्क किया है, तो आप उसको फाइनल में उसको रिटर्न भी करते हो और उसको ओरली प्रेजेंट भी करते हो। तो दोनों स्किल जो हैं वो रिपोर्टिंग स्किल जो है बच्चे के डेवलप होते हैं। इट एनेबल द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब आप प्रोजेक्ट्स करते हो कोई, चाहे फिजिक्स में करते हो, इसको तो जब 2 या 3 के ग्रुप में करते हो, तो आपको कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रैक्टिस है वो बच्चे में पैदा होती है कि कई चीज़ें हम जो है ग्रुप में कर सकते हैं, कोई चीज़ हम सिंगल भी कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रुप वाली बात आई तो इसको कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है कि एक कुछ काम कर रहा है, दूसरा कुछ काम कर रहा है। Then next, it enables the students to exercise curiosity and creativity by designing procedures to test hypothesis। और ये एनेबल करता है स्टूडेंट्स को कि वो जो जब आप लैब में जाते हो तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि इसको देखें, इसको देख, कुछ शरारतें भी करते हैं कुछ बच्चे, आप लोगों ने भी की होगी, है ना, कि ये एसिड ले लिया, इसको भी डाल दिया, इसको भी डाल दिया, बेस भी डाल दिया, और वो टेस्ट ट्यूब में कुछ ना कुछ होता है और नीचे से फट गई टेस्ट ट्यूब, लाइक दैट। तो क्यूरियोसिटी भी होती है और उससे क्रिएटिविटी भी आती है। तो वो कुछ प्रोसीजर बनाते हैं, अपने हाइपोथेसिस बनाते हैं और उनको टेस्ट करने के प्रोसीजर भी वो बना लेते हैं। देन इट एनेबल द स्टूडेंट्स टू टेस्ट इंपॉर्टेंट लॉज एंड रूल्स। तो साइंस लेबोरेटरी में जब बच्चा वर्क करता है तो उससे बच्चे में एबिलिटी विकसित होती है टू टेस्ट, वो टेस्ट कर सकता है इंपॉर्टेंट लॉज को और रूल्स को एक्सपेरिमेंटली और इन द रियल सिचुएशंस एज वेल। इट enables the students to appreciate the role of experimentation in science। और साइंस लेबोरेटरी ही एनेबल करती है बच्चे को कि वो साइंस में एक्सपेरिमेंटेशन का क्या रोल है उसको वो अप्रिशिएट करना सीखता है। स्टिमुलेट्स इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। जब लैब वर्क होगा, प्रैक्टिकल किसी चीज़ करेंगे तो इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट तो होती ही होती है। इट एनकरेजेस द स्लो लर्नर। इवन वो लर्नर जो बड़े पढ़ने में धीमे होते हैं, जिनको कुछ नहीं आता, वो भी लैब में जाके एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब वो खुद कुछ करते हैं, जाहिर सी बात है, जब हम खुद कुछ करते हैं तो हमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब दूसरा कर रहा होता है और आप सिर्फ देख रहे हैं तो दैट इज़ नॉट मच एनकरेज थिंग। सो लर्नर्स जो हैं वो भी एनकरेज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस लेबोरेटरी वर्क। देन जो लेबोरेटरी वर्क है वो चैलेंज करता है स्टूडेंट्स को, स्पेशली गिफ्टेड, और जो गिफ्टेड होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, उनमें चलता है कि ये हो रहा है तो वो ज़्यादा और ज़्यादा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। तो वो एक तरह से चैलेंजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। जो गिफ्टेड होते हैं उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है तो हम इससे भी बेटर कुछ कर सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जब वो बच्चा प्रैक्टिकल करता है, कई सॉल्यूशंस वहाँ से निकलते हैं, लाइक दैट एंड ऑल, तो बच्चा जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस लेबोरेटरी से निकल के आई हैं। आपके दिमाग में कुछ और भी आ सकती हैं जो यहाँ पर ना हो, तो यू कैन ऐड देम एट योर ओन लेवल एज वेल। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।